Yeah, now it's been recording. Thank you. Thank you once again. And आप सभी का सादर आमंत्रण करते हुए शुरू करती हूँ आज के सत्र का प्रोग्राम जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केटिंग रणनीतियाँ. Thanks once again to Youth and Entrepreneurs Federation of India (YEFI) and their innovative initiation of YesTalk. And thanks to my student Genius Ahmed Sheikh for reaching out to me, for having or reaching out to the budding entrepreneurs and udyokta. And I'm requesting Shiv ji to interrupt me whenever my presentation need to be told in Hindi, so that please go ahead and inform me. सो मैं देख सकती हूँ कि पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, मोस्टली मराठी. Sorry, excuse me, ma'am. There is something interrupting the session. Please mute the mic. Shivaji, please mute the mic to participant. Yes, Yes, ma'am. Start. Yes. So starting, I can see that most of the participants from Maharashtra and other parts of our country. Then let's get started. My warm welcome and greetings to one and all. So marketing strategies और रणनीतियाँ आप लोगों के लिए दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, द एंटरप्रेन्योर्स और उद्योक्ता, बिकॉज मैंने ये जो प्रेजेंटेशन दैट आई हैव मेड दैट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें मैंने अर्बन और रूरल केस स्टडीज भी डाले हुए हैं. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्स फॉर बिल्डिंग, ब्रांडिंग, ग्रोइंग, measuring and scale. You will be wondering what is all about. The entrepreneurial journey of yours need to be built. Whatever you are, जहाँ पे आप अभी हैं, उससे भी आपको 5 साल से भविष्य देखना होगा. 10 साल आगे क्या होगा, उसकी रणनीतियां अभी से शुरू करना होगा. 25 साल पहले आप कहाँ होंगे, आज की 2026 में आके ये आपको रणनीतियां तय करनी पड़ेगी. ब्रांड मतलब जो उद्योक्ता जिस प्रकार के एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप एसोसिएटेड हुए हो, उसका एक इमेज, एक पहचान बनानी पड़ेगी. ग्रो not only you as an owner, but the people who are associated with you need to be also grown. It's a symbiotic growing process for your entrepreneurial journey, the stakeholders whosoever are associated with it, and last but not the least, the customer satisfaction, and to turn out the loyal customers for your entrepreneurial journey. मेजर ऑलवेज मेजर द कॉम्पिटिशन्स. मार्केट में जो उतार चढ़ाव होती है, कैसे आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे उस पर compete कर रहे हैं, कैसे उतार चढ़ाव को नाप रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका स्केलिंग करना चाहिए. तो आप अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को इस 5 भागों में भाग कर सकते हैं. फर्स्ट आपको बिल्डिंग पे ध्यान देना होगा. देन ब्रांड बिल्डिंग को एक नई पहचान देना होगा जो किसी भी कलर से एसोसिएटेड हो सकता है, आपके नाम से एसोसिएटेड हो सकता है, आपके जगह से एसोसिएटेड होता है, आपके जिले से हो सकता है, गांव से हो सकता है, आपके राज्य से हो सकता है. You will go for the scaling. So this is the first 5 important aspect of marketing strategies और रणनीतियों के लिए. आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लाती है. व्हाई इंडिया इज द कंट्री which has paved the way for entrepreneurs and holds a greatest opportunity. कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने रिसर्च करके आपके लिए बना के रखा है, आप देख सकते हैं. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है पूरे विश्व में. उसमें पॉपुलेशन हमारा 1.44 बिलियन से ज्यादा है. वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्टेड के आंकड़े बताते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2030 होने वाला है 300 ट्रिलियन रुपीस. जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो फास्ट ग्रोइंग बेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारा इंडियन इंटरनेट यूजर्स जो कि अभी हैं 2026 में 820 मिलियन.
And interesting to note that the 65% of population are under 35 years of age, who are young aspirational buyers of your product and services, and which can be an instrumental figure for your entrepreneurial journey. You can see that the government of India and other association or bodies has funded 6600 plus startups from the year 2024 to 2026, which is ongoing. So funded in the last 3 years. And very important is that there are 900 million rural population who are untapped, and it is a paving you the room for growing market, that is 900 million. सो व्हाट वी विल कवर, हम क्या इस सत्र में जानेंगे? एक तो हम जानेंगे मार्केट रिसर्च एंड एसटीपी. एसटीपी का फुल फॉर्म है सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, देन पोजीशनिंग. आप उसे तोड़िए, डिवीजन बनाइए, भाग करिए, देन टारगेट करिए, लक्ष्य में डालिए, देन पोजीशनिंग, आप उसके ऊपर कार्य करें. उसे बोलते हैं मार्केट रिसर्च, शोध मार्केट के ऊपर, जिस मार्केट पे आप काम कर रहे हैं. एंड टू नो योर कस्टमर बिफोर स्पेंडिंग ए रुपी. आप आपका 1 रुपये निवेश करने से पहले आपको जानना होगा कि आपका मार्केट कैसा है, आपका सेगमेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, और पोजीशनिंग कैसा होगा. सेकंड है ब्रांड बिल्डिंग एंड पोजीशनिंग. आपका स्टोरी, आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड विजुअल आइडेंटिटी, ताकि आपका जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है उसको जान मिले, पहचान मिले, नाम मिले, विजिबिलिटी मिले डिजिटल वर्ल्ड में एंड इन द ट्रेडिशनल फॉर्म में. थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग. कुछ डिजिटल मार्केटिंग के संबंधों में हम जानेंगे, जैसे कि एसईओ, सोशल कंटेंट क्या होता है, ईमेल में कैसे आप बिजनेस का लेन देन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कैसे आप लोगों को डिलीवरेबल्स दे सकते हैं. फिर हम जानेंगे ट्रेडिशनल एंड रूरल मार्केटिंग के बारे में, किसे हम ऑफलाइन चैनल्स बोलते हैं, किसे बीटीएल बोलते हैं, किसको हम किराना नेटवर्क्स बोलते हैं. फिर हम बात करेंगे ग्रोथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, जिसमें आता है फनल्स, रेफरल्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड एनालिटिक्स. लास्ट बजट एंड मेजरिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, टूल्स एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे. अगर आपके मन में कोई शंका है, दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में feel free to write, and after my presentation I will read those and I will answer accordingly. So first is that market research and the STP framework. As I already told, this component has 3 aspects. What is your segmentation, targeting, then positioning. आप जो देख रहे हैं दर्शक, जो इसे कार्यक्रम को देख रहे हैं, और ये YouTube में सदा के लिए रहेगा, तो आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, कैसे आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को आप इससे और इवॉल्व कर सके और रिफाइन कर सके. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंटेशन. इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ द मार्केट बाय डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक्स में पॉपुलेशन क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, रूरल और अर्बन है कि नहीं, साइकोग्राफिक्स, कौन कितने में खरीदने वाला है, उनका माइंडसेट क्या होता है, लोकेशन वाइज जियोग्राफी, जो आप महाराष्ट्र में सोलापुर में जो चीज़ बिकेंगे वो आप पुणे में उसे डिफरेंट type of people will be there, different buyers will be there, and the southern based product cannot be, same strategy cannot be applied in the northern part of the India, and the behavior of the customers are very different. रूरल इंडिया में एज आ जाता है, कौन सा उम्र, मतलब कौन सा एज है, कौन सा एज का फैक्टर बहुत ही बड़ा है, कास्ट का फैक्टर बड़ा है, लैंग्वेज फैक्टर बड़ा है, सीजनल, आपको सबको पता है सीजनल इनकम. आज होली है तो हम होली के ऊपर रंग बेच रहे हैं, वो पिचकारी बना रहे हैं. कल दिवाली है, आज मतलब हार्वेस्ट जो क्रॉपिंग होता है, एग्रीकल्चर का सीजन होता है,
ठीक है। तो उसके ऊपर प्रॉक्सिमिटी टू मंडी, आपके मतलब जहाँ से प्रोक्योरमेंट होता है आपकी चीज़ों का, आप वहाँ से मंडी तक कैसे, कितना दूरी है आपका, तो वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। अर्बन इंडिया में जो लोग टाउन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सिटी के ऊपर एंटरप्रेन्योर हैं, उनको काम करना होगा इनकम ब्रैकेट का। अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरा इनकम ब्रैकेट कौन सा होगा, तो उसी हिसाब से आपको, कोई स्टूडेंट है, कोई काम करने वाला है, कोई होम मेकर है, कोई मतलब जो डेली वर्कर है, डेली वेज लेबरर है, आप उनको कैसे इनकम ब्रैकेट में आके आप आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल क्या है, डिजिटल बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपको आंकड़े में बताया, बहुत सारों के पास अर्बन में स्मार्टफोन है, तो आप व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक के दौरान यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हैं। और एंड प्रोफेशन क्या है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई नॉन गवर्नमेंट में है, कोई बिजनेस में है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। तो इस हिसाब से आपका सेगमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। देन आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब है फोकस योर लिमिटेड रिसोर्सेस ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स। हो सकता है कि आपका लिमिटेड रिसोर्सेस हो, कोई कोई एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिर्फ 5 आदमी से चलता है, कोई कोई 2 आदमी से काम कराते हैं, दैट इज फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट limited resources, how can they be utilized for the maximum output, and it should be a profitable segment of yours. First of all, rural, for example, landowner farmer versus landless laborer needs very different messaging. इसका मतलब है जो जिसके पास खेत है, अपना खेत है और वो फार्मिंग करता है, वो खेती करता है, वो एक किसान है, उसका जो उसको जो मैसेज हम देंगे वो बहुत अलग होगा, जो किसान जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास ओनरशिप नहीं है, वो बेचारा दूसरों के खेत में काम करता है। तो दोनों किसान हुए, पर दोनों का जो टारगेट है, दोनों का जो सेगमेंटेशन है, वो बहुत ही अलग है दोनों के। एक रूरल, देन अर्बन में आइए। अर्बन में आपको अर्ली एडॉप्टर मिलेंगे, जैसे कि मैंने, आप इंस्टाग्राम में आपके एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को आप डाल रहे हैं, तो उसमें जो एडॉप्टर हैं, जो मैसेज को देखते हैं, वो टीयर 1, टीयर 2 में और टीयर 3, टीयर 4 में रोल आउट होते हैं। ठीक है। तो जो कस्टमर और जो ऑडियंस जो आपको मैसेज को देख रहा है, वो कैसे कंज्यूम कर रहा है, कोई आप अगर देख रहे हैं तो आप कैसे कंज्यूम करेंगे, उसमें अपील होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अच्छा मैसेज होना चाहिए। आप दूसरों का सेगमेंटेशन करके आप किसी को ठेस ना पहुंचाइए, ऐसा मैसेज क्यूरेट करिए जैसे कि टारगेट ऑडियंस को, हर किसी को, हर अगर देख के लगे अच्छा ये मेरे लिए बना है, दिस मैसेज फॉर मी ओनली, आई शुड go for that particular product or the services. Then positioning. Once this segmentation and targeting done, then you need to focus for positioning. What is positioning? Own a unique space in the customer's mind versus competitors. आपका जो उद्योग है, आपका जो जर्नी है, वो कॉम्पिटिटर कैसे लोगों को रीच आउट कर रहा है, वो आपको रिसर्च करना होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि वाई शुड दिस कस्टमर इन दिस कॉन्टेक्स्ट चूज यू, क्यों मेरे जो कस्टमर है वो मुझे क्यों चुनेंगे, मेरे में ऐसा क्या खूबी है, मैं क्या प्राइस पे काम करूं, करना अच्छा रहेगा तो कि मैं कॉम्पिटिटर को मात दे सकूं, क्या मैं सेमी अर्बन का पल्स को समझ सकूं, जो एस्पिरेशन, जो क्वालिटी के ऊपर काम करता है। क्वालिटी हमेशा अर्बनाइट वो क्वालिटी पे मतलब नजर बहुत रखते हैं। आप प्राइस में, आप रूरल में जो सस्ता हो, बिकॉज उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता है, एंड अर्बन में थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है, तो इसीलिए वो क्वालिटी ढूंढते हैं। तो आप किसको प्राइस में आप मैसेज कर रहे हैं, किसको एस्पिरेशन में मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दो, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर विच इज वेरी यू नो sustaining brand or product throughout a longer period of time, more than a 4 decade, which is competing with the established brand like Rin,
Surf Excel, then what not, the local detergent powder. But घड़ी ये बोलता है ये रूरल बेस्ड कस्टमर के लिए है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो दैट इज फॉर एस्पिरेशन. सो आई एम नॉट telling in the air like this product is very very good, very innovative, very easy to use and all. आप पहले इस्तेमाल करें, देन यू ट्राई टू बिलीव दैट वट एवर हैज बीन टोल्ड दैट इज ट्रू और नॉट. You examine by yourself. So dear audiences, whosoever entrepreneurs, these three things are very very important, that is segmentation, targeting and positioning. Then here I have done case study for you, market research in practice, that is urban and rural. पहले हम बात करेंगे रूरल इंडिया की. 2000 से चली हुई है अभी तक. ये बोलता है आईटीसी का ई चौपाल. आईटीसी का डिजिटल कियोस्क ट्रांसफॉर्म्ड फार्मा मार्केटिंग. जो खेती में हैं जुड़े हुए हैं बंधुए, वो जान सकते हैं कि आईटीसी एक कंपनी ब्रांड है जो कि इंस्टॉल्ड इंटरनेट कियोस्क किया है ई चौपाल. उसमें 40,000 विलेजेस अक्रॉस 10 स्टेट में भी, आपके राज्य में भी ये हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर ई चौपाल में आप जाइएगा, आपको मिलेगा रियल टाइम मार्केट प्राइसेस. ऐसा होता है कि पहले जो है, जैसे कि आदित्य बिरला, उनका जो प्रोडक्ट है वो जाके वहां से लाते हैं रियल फार्मर से. फार्मर को रियल प्राइस नहीं पता होता है, तो एक का जो मतलब मार्केट प्राइस, एमएसपी, एमआरपी, इस सब में डिफरेंशिएशन होता है. पर ई चौपाल एक ऐसा इन्वेंशन है, एक ऐसा मतलब मार्केट रिसर्च जो है, वो क्या करता है, फार्मर्स को रियल टाइम में मार्केट प्राइस बताता है, वेदर का डेटा देता है, एग्रीकल्चर का बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कियोस्क में लिखा रहता है. तो ये क्या बोलता है, ये जो दलाल लोग रहते हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव है, जो कि बड़े कंपनी और किसान के बीच में काम करते हैं, उनका जो अथॉरिटेटिव है, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो बंद कर दिया है. देन ये फेयर मार्केट रेट में ये चलता है. तो रिजल्ट क्या हुआ है अभी तक, 2000 से ये शुरू हुआ है, अभी तक देखने में आया है 4 मिलियन फार्मर्स गेट कनेक्टेड टू इट. And ITC soybean procurement costs fell 5%, while farmers earned 10 to 15% more per harvest. So this is the classic Indian case study, which is rural based, that is ITC's e-चौपाल. इसके आईटीसी ई चौपाल को सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल में भी इसको सराहा गया है. और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर्च भी कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे. आप किसी को पूछ सकते हैं कि भाई आईटीसी का ई चौपाल कैसा है. सच्ची में मतलब मैं बता रही हूँ ये नहीं है, आप देख सकते हैं कि 10 स्टेट, ये कौन सा 10 राज्यों को चुना गया है, कौन से 40,000 विलेजेस इसमें से प्रभावित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, और ई चौपाल कैसे काम करता है. फर्दर ये ट्राई करेगा इन फ्यूचर में जाके, बहुत सारे अदर स्टेट को इंक्लूड करेगा, एंड there will be many. So you as a budding entrepreneur, that type of to eradicate that exploitative middleman culture को भी आप उसे negotiate कर सकते हैं. And if required, you get in touch with that e-चौपाल ITC's invention. Then second case study, which is urban based, नायका. जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इस पे मतलब को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री उसमें से सारे मतलब नेल पॉलिश, ब्यूटी प्रोडक्ट उसमें मतलब बेचते हैं वो लोग. तो ये 2012 से है, ये अर्बन इंडिया के लिए ही बनाया गया है. कस्टमर रीच जो है वो 53,000 करोड़ ब्रांड का है. तो यहाँ पे फाल्गुनी नैयर, ये जो है फाउंडर है इसके, इंडियन वुमेन, वो चाहते थे ऑथेंटिक ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग एमएनसी के ज्यादा ही प्रोडक्ट यूज करते थे. लैक्मे हो गया, मेवेलिन हो गया, दोज आर द प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन स्टार्टेड नॉट आवर कंट्री.
बट हियर नायका एक थर्ड पार्टी एंडोर्सर है यहाँ पे। ओन प्रोडक्ट जो काजल है, लैक्मे का काजल से मतलब नायका का काजल मोस्ट प्रिफर्ड है, प्राइस कम है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज देयर। सो सी हैज स्टार्टेड हर जर्नी ऑन 2012। देन ये क्या बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव लग्जरी स्टोर को मात दिया, देन काउंटरफिट मार्केट प्लेसेस को सर कैच किया, डीप कस्टमर रिसर्च इनको ये बताया कि एस्पिरेशनल बट वैल्यू कॉन्शियस जो अर्बन वुमेन सेगमेंट है, मेरा हर पैसा जो मैं लैक्मी काजल को खरीदने में लगाती हूँ, उसमें अगर ये 100 रुपए में मुझे मिलता है, ये मुझे 60 और 50 में मिलेगा, एंड सेम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दैट रिसर्च इज नीडेड from your end. So result क्या हुआ, नायका built its entire brand on trust, भरोसा, curation and education, जो ट्यूटोरियल, कस्टमर ट्यूटोरियल रिव्यू दिया, एंड ग्रीव टू 35 मिलियन प्लस कस्टमर्स नाउ, एंड लिस्टेड, ये 2021 के डेटा है, जो 53,000 करोड़ वैल्यूएशन है अभी नायका का। तो जो जो कोई भी आप देख रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी इज नॉट एन इजी, इट्स अ सिम्बायोटिक प्रोसेस। जैसे मैंने बोला कि आपके जर्नी को 25 साल बाद, 50 साल बाद कहाँ कैसे देख रहे हैं, 10 साल बाद आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आपका 1 रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न में कितना दे रहा है, वैसे ही आप उसे जोड़ सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग एंड पोजिशनिंग, इसमें आपका स्टोरी होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा स्टोरी। कैसे स्टार्ट करें आप इसको, इस पीपीटी को आप गौर से देखें, आप नोट करें, उसके बाद आप अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी, क्योंकि मुझे नहीं पता है आप कौन से एंटरप्रेन्योर जर्नी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आप लिखिए कि आप जिस भी एंटरप्रेन्योर जर्नी के साथ जुड़े हुए हो उसका स्टोरी क्या होगा, कैसे मैसेज आप देना चाहते हो, यूएसपी क्या है। यूएसपी है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज इज गुड इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स, दैट क्लेम आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस बेसिस में कर सकते हैं, क्वालिटी पे, हाइजीनिक पे, प्राइस पे, डिलीवरी पे, लॉजिस्टिक्स पे, वायर हाउसिंग पे, या फिर आपका ट्रांसपेरेंसी पे और ट्रस्ट पे, जो ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी भी देता है। विजुअल आइडेंटिटी, आपका एंटरप्रेन्योरल जर्नी को आप व्हाट्सएप में डालिए, एक बिजनेस पेज करिए, फिर आप इंस्टाग्राम में एक पेज खोलिए, फेसबुक में पेज खोलिए, आप पोस्टर बना के, अगर ये मतलब संभव है, उसको जहाँ पे आप रहते हैं उसको दिखाइए, ब्रांड वॉइस जाके बोलिए। बहुत सारे लोग अगर ये जो है बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें कम्युनिटी एंकर होगा। जैसे कि ब्रांड वॉइस में मैंने ये केस स्टडी दिया है, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, जैसे कि हम डेली बात करते हैं। अच्छा, हम पापड़ करेंगे तो हम लिज्जत पे पापड़ की बात करते हैं, तो लिज्जत पापड़ भी ऐसे गृह उद्योग है, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी ही था जो कम्युनिटी बेस्ड था, ठीक है। तो जोमेटो बहुत ही फेमस है अभी, बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं तो मुंह से निकल आता है जोमेटो कर लो, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है आप उसी को यूज करें। अगर मराठी बोल रहे हैं तो मराठी यूज करें, मराठी कस्टमर करें। मुंबई में है तो उसे मिक्सअप करें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंट पीपल who speaks different languages are there. So every respect and local language use, and the this conversational style need to be put forth. देन केस स्टडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात में ये हुआ था अमूल, इसके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, एंड ये वुमेन के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। और अमूल गर्ल अभी फेमस है। ये सिर्फ एक आइडिया की जरूरत है क्या है। आपको मैं बताऊंगी अर्बन बेस्ड जो का है ये गुजरात जब रूरल का था, आनंद का, अभी वो पैन इंडिया का ब्रांड प्रोडक्ट बन चुका है। इसमें सारे सारे बहुत सारे लॉयल कस्टमर है, हर हर रोज ये जुड़ता है, और जो है मतलब मिल्क रेवोल्यूशन ये लाया है इंटरनेशनली। इट इज वेल अक्लेम्ड वेंचर, बट जस्ट ये थॉट था वर्गीस कुरियन जी का,
and rest is the history. Second one is your urban youth. Here, boat company, how boat built India's number one wearable brand in 7 years. It is made for Indians, make in India movement का affordable stylish audio. अभी आप हेडफोन, ईयरपॉड बोलते हैं, म्यूजिक करते हैं, सभी अभी बोट के साथ कंपैरिजन होता है. इसका जो टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग अर्बन प्रोफेशनल जो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, कान में लगा के बैठ जाते हैं, एंड स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट. सो हियर दिस केस स्टडी बहुत सारे मतलब बेनिफिट दिए हुए हैं. डायरेक्ट टू कंज्यूमर दिया हुआ है, कम्युनिटी, सुपर फैन इकोसिस्टम, हर मतलब डिजिटल में उसका ऐड आता है, उसके बारे में आता है, रिव्यूज अच्छे आते हैं. डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स. हियर आप, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है. अगर आपका सोशल मीडिया है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं. कैसे गूगल ऐड आप यूज कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पे आप रील बना सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं यूट्यूब में. लिंक्डइन में अगर है तो आप हैशटैग कीवर्ड से ज्वाइन कर सकते हैं. ट्विटर और एक्स में है तो लीडरशिप और पीआर में कनेक्ट कर सकते हैं. कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, रील होते हैं. एक बात बता दूं, इसमें यू डू नॉट हैव टू बी मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज. go for your own language, go with your own sentiment, go best what you are at. Because entrepreneur बनने के लिए there is one thing which is required, that is called courage, and you have already shown the courage and nobody can stop you. So मतलब then email marketing, अगर आप knowledgeable है, educated है, then email marketing you also need to use. देन व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, आप व्हाट्सएप में भी चैनल हो गया है, वेबसाइट मेंटेन करिए, देन उसमें आप ग्राफिक्स डालिए. देन देयर आर द एग्जाम्पल हाउ यू कैन एनहांस द डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम. सो हियर अगेन डिजिटल मार्केटिंग का मैंने दो इकोसिस्टम का दोनों केस स्टडी दिया है. जोमेटो का तो मैंने पहले ही बता दिया है, और एक है मीशो. मीशो इज इन कंपैरिजन टू अमेजॉन, इन कंपैरिजन टू मिंत्रा, दिस इज सेमी अर्बन एंड रूरल. बजट फ्रेंडली होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सस्ती मिलती हैं, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत रहता है. तो डिजिटल मार्केटिंग मीशो हैज रेवोल्यूशन, लेकिन एवरी इट वाज स्टार्टेड इन 2015 एंड इट गॉट मोमेंटम. देन थर्ड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर. आप लोग क्या करें, जैसे कि मैंने बोला, आप ऑडियंस को सेग्रीगेट करें, वैसे ही आप डेमोज दे. इन्फ्लुएंसर जो है आपके लोकल एरिया में, जो आपके लैंग्वेज में इन्फ्लुएंसर, उससे कोलैबोरेशन करिए. डेली रील डालिए कुछ ना कुछ आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में, कि दोस्तों देखिए ऐसा ऐसा है, आज हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं. कस्टमर का रिव्यू डाल दीजिए. यूट्यूब में भी आप वैसे ही कर सकते हैं. हाउ टू DIY बिहाइंड BTS, ये प्रोडक्ट और सर्विस बनाते वक्त आपके जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं. आप लोकल लैंग्वेज में डेमो दिखाइए, कैसे आप ओरिजिनल चीज़ों को तोड़ के कैसे बना रहे हैं. यू शो द एफर्ट. देन फेसबुक में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज पोस्ट डालिए, लोकल इवेंट कराइए. लिंक्डइन में अगर है तो मुझे पहले जानना होगा, मतलब हम जब बात करेंगे देन आई वुड लाइक टू नो लाइक हाउ योर जर्नी एंड हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड. देन ट्रेडिशनल एंड रूरल मार्केटिंग. एक तो आपको पता होगा कि आप जब जाते हैं कहीं पे, ट्रेन से जाते हैं, कोई होता है कि आप न्यूज़पेपर में देख लें, रेडियो में देख लें, टेलीविज़न में देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. और एक होता है आपका BTL, इन स्टोर. BTL मीन्स बिलो द लाइन मार्केटिंग. यहाँ पे आपका कोई भी मास मीडिया नहीं यूज होता है. आप किराने के स्टोर में जा रहे हैं, भैया आप मुझे एक दाल दे दीजिए 500 का, वो अपने से ही आपको देता है, नहीं मार्केट में ये नया आया है मैम, 5 रुपया कम है, आप इसे ले जाइए. तो दैट इंटरेक्शन इज डायरेक्ट, दैट इज नॉट वेयर any mass media interferes. आप
पूछ रहे हैं कि पता है मेरे हाथ में बहुत दर्द था, मैंने उस एक लोकल तेल लगाया, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कहाँ से लिया? तो दैट इज कॉल्ड दैट snowballing effect. You are getting the cues from the direct marketing, from your persuasive technique. आप मंडी में जा रहे हैं, हाट में जा रहे हैं, मेला में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इवन इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कराता है B2B रिटेल सेल्स के लिए प्रगति मैदान में। हर स्टेट कराता है वाणिज्यिक मेला जो बोलते हैं फॉर बिजनेस। एंड आप ट्रेन में जा रहे हैं, देखेंगे ट्रेन में बहुत सारा होर्डिंग्स रखा है, ऑटो के पीछे लगा हुआ है, बस के पीछे होर्डिंग्स लगा है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अर्बन चैनल्स। तो आप वैसे ही उसको क्यूरेट कर सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, गाना बजा के फोक, आप जो फोक इंस्ट्रूमेंट है अपनी जगह पे वो कर सकते हैं। पंचायत मीटिंग में आप बोल सकते हैं। वॉल पेंटिंग में जो लो कॉस्ट है वो कर सकते हैं। देर आर मेनी वेज, बट यू नीड टू नो वेयर एंड हाउ टू यूज दिस वन। सो आप देखिए जो जियो है वो कैसे, मतलब 400 मिलियन रूरल इंडियाज को कैप्चर करके रखा है। एंड ये नहीं था, तो ये जियो जो है उसका जो रिलायंस का वो सस्ते में था पहले, तो वो जी है डिजिटल डिवाइड, मतलब इंटरनेट 5G पहुंच गया है पर बहुत सारी जगह पे छोटा सा स्मार्टफोन भी नहीं है, छोटा फोन ही यूज करता है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। एंड दिस पैन इंडिया रूरल मूवमेंट, रिलायंस जियो हैज गॉन अहेड वन स्टेप। और यहाँ पे देखते हैं रूरल वुमेन, जो गांव के जो महिलाएं हैं, उन्हीं का एक जर्नी था 1959 में, 1959, कैन यू इमेजिन। लेकिन लिज्जत पापड़, श्री महिला गृह उद्योग, यह भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी था। फर्स्ट 20 सालों में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ बोलते थे, क्योंकि उसका क्वालिटी, जो महिला है वो बोलते हैं कि घर के जैसा। अभी मैं आपको और एक बताती हूँ, जो झा जी का अचार है वो घर का अचार है, कटहल का अचार। दे आर everywhere. If you see, like, every in Instagram, Facebook, there will be lots of advertisement, word of mouth। मैं यूज की हूँ, मैं बोल रही हूँ लिज्जत पापड़, ये वर्ड ऑफ माउथ में चला, जो BTL के अंडर में आता है। उसके बाद टुडे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सपोर्ट करता है 15+ कंट्रीज को, लिज्जत पापड़। तो ये हमें बताता है कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स कैन बिल्ड नेशनल ब्रांड। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर में आके इंग्लिश बोलना पड़े, बहुत अच्छा एजुकेशन आपका हो। इट इज ऑल अबाउट योर आइडिया, आप आइडिया को कैसे कर सकते हैं। हाँ, एंटरप्रेन्योर का और एक भी खास बात है कि आपको अगर नुकसान हुआ, दैट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंज्यूम दैट। टूटना नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है ये जानना होगा। और ये है मार्केटिंग फनल, ये स्ट्रेंजर टू एडवोकेट होता है, ये एक टेक्निकलिटी है। एवरी रुपी जो आप, 1 रुपी से 10,000 जो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको देखना होगा आप उसको 4 भागों में विभक्त करें, 4 भागों में, 5 भागों में डिवाइड करें। अवेयरनेस, मेरा रीच कैसे होगा, लोग कैसे मुझे जानेंगे, इम्प्रेशन मैं कैसे क्रिएट करूंगा, रिकॉल, मतलब आपका मैंने वो प्रोडक्ट देखा कहीं पे हाट में जाके, देन आई सर्च इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड आई रिमेम्बर योर प्रोडक्ट बिकॉज आई हैड टेस्टेड इट और आई यूज इट, आई फाइंड इट वेल, सो रिकॉल। ये ऐसे कस्टमर यूज करते हैं। तो आप कैसे दे सकते हैं, सोशल एड दे सकते हैं, SEO उसको बूस्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ होम OOH, रेडियो यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर सकते हैं और PR में डाल सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे आप लोग, ब्लॉग पोस्ट के, रील के, फ्री वेबिनार, आप डेमो वीडियो, डेमो प्रोडक्ट दे दीजिए। देन वेबसाइट ट्रैफिक एक होता है, उसको समझ के वीडियो का व्यूज भी बढ़ सकता है। कंसिडरेशन में केस स्टडी आप डालें, टेस्टिमोनियल डालें, जो आपका कस्टमर जो आपसे खुश है उनको आप यूज करें, बोले कि आप एक वीडियो बनाए, बोले कि आप, मैंने जो अपने जो यूज किया वो अच्छा है। फ्री ट्रायल, जो सैचेट है 1 रुपए 500 रुपए फ्री में आप दीजिए, छोटा छोटा आप यूज करें। व्हाट्सएप पे आप
रीच आउट बढ़ाइए। आप अगर गुजरात से हैं, आप अगर बंगाल से हैं, आप अगर साउथ से हैं, डू नॉट थिंक दैट यू विल बी ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर प्लेस। आप बाहर में भी व्हाट्सएप के दौरान काम करें। कन्वर्सन कैसे करें, ऑफर दे, अर्जेंसी करें, इजी चेकआउट, जैसे कि पैसा उसमें प्रॉब्लम ना हो, ईएमआई का ऑप्शन रखें, कन्वर्सन रेट रखें। देन आपका रिटेंशन मतलब आप जो कस्टमर आपके हैं उसको आप कैसे आपके साथ जोड़ के रख सकते हैं बहुत देर तक। तो उसको लॉयल्टी आना चाहिए। उसको आप बर्थडे का डेट लिख के रखिए, फिर बोले हैप्पी बर्थडे, देन हैप्पी एनिवर्सरी, हाउ डू यू फॉरगेट अस, काइंडली डू विजिट अस, वी आर गिविंग यू। सो आप उसे रिमाइंडर दे, आप उसके साथ जुड़े बने रहें, तभी बोलेगा अच्छा ये छोटा सा है पर फिर भी ये मुझे याद रखा है, देन आई विल गो फॉर इट। देन इन्फ्लुएंसर एंड रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मतलब मैंने यूज किया है, मैंने आपको बोला, फिर आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, फिर आप किसी और को रेकमेंड करते हो। तो इन्फ्लुएंसर जो है ये है नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा, सेलिब्रिटी। और रेफरल मार्केटिंग में जैसे पेटीएम है, आप किसी और को रेफरल, जैसे मैं यूज करती हूँ, मैं किसी और को बोलूँ, देन आई विल गेट 50 कैशबैक। फोन पे देता है, डुनजो, शेयर चैट। वैसे ही आप भी आपके एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में ये इससे ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो इन्फ्लुएंसर टीयर्स है, आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होगा मुझे बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ मार्केटिंग इन इंडिया, आईटीसी का एग्री सप्लाई है, यूनिकॉर्न बेबी ब्रांड है, जो मामा अर्थ अभी बहुत प्रचलित है, जिसमें डिजिटल ग्रोथ का जो डिजिटल वर्ल्ड में वो बहुत ही सस्टेन किया हुआ है। आप मैंने यहाँ पे आपका दे दिया है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैट्रिक्स, एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट नो, सीएसी दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये मैं स्किप करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ये भी है बजट का, आप कैसे आपके बजट को आप कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन मैंने दिया है, चैनल मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैंने आपको दो फिर से केस स्टडी दिया हुआ है। एक है आपका रूरल डिजिटल पेमेंट, जैसे कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ था। पेटीएम करो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ठीक है। पेटीएम करो, लाइक यू नो इट इज इन एवरी लैंग्वेजेस। और उसमें क्या हुआ, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद हर कोई, अभी देखिए आप पानी पूरी खाएंगे, फल वाले से फल ले रहे हैं, चिकन खरीद रहे हैं, फिश खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, आप वो भैया जरूर एक क्यूआर कोड रखे होंगे। इवन हमारे यहाँ तो जो रिक्शा वाले हैं, वैन वाले हैं, वो भी वो क्यूआर कोड यूज करते हैं। देन हियर ब्रांड मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी, गुड थिंग्स फॉर गुड पीपल, देयर इज अ केस स्टडी अबाउट दिस। सो यहाँ पे जो है 10 गोल्डन मार्केटिंग रूल्स है आप लोगों के लिए। पहले तो है स्टार्ट विद द कस्टमर्स पेन, जो आप समझिए कि उनको क्या चाहिए, उनका दर्द क्या है। नॉट आपका प्रोडक्ट आप महिमामय करिए या फिर प्रेस करिए। आप सोचिए कि कस्टमर एक गरीब इंसान और फिर मिडिल क्लास या फिर रिच, जो भी हो आपका कस्टमर, आप देखिए उनका दुख कहाँ है, दर्द कहाँ है। फिर आपका ईमेल लिस्ट बनाइए, आप डे वन से उसे जुड़े रहिए। आपका जो है, अभी आप किसी को हायर भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको भी आप इंटर्नशिप में दे सकते हैं। उसे समझिए कि अभी देखिए हर यूजीसी बोलता है कि इंटर्नशिप मैंडेटरी है। आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी है, आपका रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट को आप काम पे डालिए, इंटर्नशिप दीजिए, उनको एक सर्टिफिकेट बनाइए, बोलिए कि आप ये सोशल मीडिया आप देखो, आप इसे करो, जो जो मैंने पहले बताया है, एसटीपी पे काम करो, ठीक है। देन आपको सर्टिफिकेट दे, कुछ आप रेम्यूनरेशन भी दे सकते हैं, कोई कोई सर्टिफिकेट भी मान जाते हैं। तो यू यूटिलाइज दैट रिसोर्सेस। रूरल इंडिया में ट्रस्ट ट्रैवल्स थ्रू पीपल, हमारे में भरोसा, रूरल इंडिया में भरोसा ज़्यादा काम करता है। तो कम्युनिटी लीडर जो है पंचायत के थ्रू जाइए, जो आंगनवाड़ी दीदी हैं उनके थ्रू में जाइए। आप अच्छा काम करें तो वो भी अच्छा ही बोलेंगे, और
प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं, वो अगर ठीक लगा तो वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर जाएगा। तो टेस्ट स्मॉल, आपका जो है गूगल एनालिटिक्स, थोड़ा सा पैसा देके आप काम उसमें निवेश कर सकते हैं और देखिए कैसे क्या मतलब काम देता है, पर वो छोटा सा आप इन्वेस्ट उससे करें। फिर कंसिस्टेंसी बीट्स वायरलिटी। आप वायरल होने के चक्कर में आपको चैनल नहीं बनाना है, कंसिस्टेंसी आप उसे मेंटेन करें, देखिएगा वो आपको ज्यादा फलदायी होगा। लोकल लैंग्वेज कंटेंट कन्वर्स 3 into बेटर इन दैन इंग्लिश टीयर 2/3। ये इंग्लिश के चक्कर में आप पागल मत बनिए, जो लोकल लैंग्वेज है उसी पे आप मतलब उसको कमांड करें और उसे ही आप यूज करें। आपका जो योर पैकेजिंग इज योर मार्केटिंग इन ऑफलाइन, कैसे आप पैकेज कर रहे हैं, वो फट जा रहा है कि एक छोटा सा मैसेज आप डाल दें, थैंक यू, खुद खुद का नोट, ऐसा कुछ अपने लोकल लैंग्वेज में, और या फिर हिंदी में कोई भी ट्रैक CAC LTV, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन जो मैंने बोला है, बेस्ट मार्केटिंग है टू रिकमेंड प्रोडक्ट, पीपल रिकमेंड इधर भी। अगर लोग बोले कि नहीं ये जो हमने इस्तेमाल किया है वो अच्छा है, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड ब्रांड इज व्हाट योर कस्टमर सेज अबाउट यू। आपके जो कस्टमर है वो बोलेंगे कि कितना अच्छा है, आप नहीं बोल सकते। अगर वो बोल रहे हैं कि अच्छा है तो ये आपका है, ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग गुड। अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप देखिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों गुस्सा है, आपका एटीट्यूड है, मतलब कोई जो पर्सनल है वो क्या कुछ गलत बोल दिए हैं, क्यों कस्टमर हैप्पी नहीं है, वो आपको काम करना पड़ेगा। तो ग्रेट मार्केटिंग जो है ये सिर्फ बेचना नहीं है, बट एक मूवमेंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इंडिया में 900 मिलियन से ज्यादा रूरल कंज्यूमर है, 500 मिलियन से ज्यादा अर्बन एस्पायरेंट है। ये विश्व का ग्रेटेस्ट ग्रोथ स्टोरी है। तो स्मार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्पीक देयर लैंग्वेज एंड अर्न देयर ट्रस्ट, दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। तो मैंने यहाँ पे केस स्टडीज जो लिखा है वो मैंने दे दिया है यहाँ पे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सेशन बहुत ही लर्निंग फुल था और बहुत ही बढ़िया था। किसी को सेशन के दौरान कोई क्वेश्चन हुआ होगा तो प्लीज मैडम से आप बात कर सकते हैं। यस, संतोष जी, हर्षिका मैडम, दीपाली मैडम, सुरेखा जी, आज के सेशन के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस है या और जानकारी की जरूरत है तो आप अपना माइक ऑन करके अनम्यूट होके आप बात कर सकते हैं। शर्मिला जी नमस्ते। नमस्ते। जी। आपने बिजनेस कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, अलग अलग तरीके, फेसबुक है या इंस्टा है, इसके ऊपर कैसा मार्केटिंग करना चाहिए, या आपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में अपन खुद बताने से अच्छा कस्टमर ने बताया वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब हमारे ध्यान में आया है। एक्चुअली मैं आप जो बोल रहे हो वो सब करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग करते होंगे या कुछ नहीं करते होंगे, तो उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही सही है। तो अपना शेफ मसाले का एक ब्रांड है मैम, अपन ने कोविड के कार्यकाल में स्टार्ट किया था। और ये सब ऑथेंटिक स्पाइसेस है, 32 वैरायटीज के सब स्पाइसेस है। और ये सब आपने बोला जैसा कि पेज बनाना है, इंस्टा हम्म। है, फेसबुक पे, इसके ऊपर भी शेयर करते हैं। और अभी तो ऐड भी लगा रहे हैं हम लोग, पेड वाला, हर डे पर डे 120-30 रुपए की है, तो अच्छा रिजल्ट आता है उसका। उसके बाद में अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे, मीशो के ऊपर है, ये सब के ऊपर है, तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो इससे ये कंसिस्टेंसी आपने जैसे बोला वैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। बहुत सारे अपने एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, कुछ लाइक नहीं मिले या व्यूज नहीं आए तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए वो नहीं करना है, और अच्छी तरह से अपना सातत्य रखा है, अलग अलग वीडियो ये रखा है,
तो अच्छा होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं भी रेगुलर करता लेकिन कभी कभी भूल जाता है। अभी आपने बोला तो मैंने खुद एक रील्स था तो वो अभी शेयर किया इंस्टाग्राम पे। एक कृषि प्रदर्शन था, उसमें एक महिला को अपने मसाले दिए थे खाना बनाने के, तो उसका लाइव वीडियो वगैरह लिया था, वो अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था। तो ऐसा कोई ना कोई बोलने वाला आप चाहिए। क्या या बोले, आपका स्पाइसेस का वो आपका कंपनी का नाम क्या है? शेफ मसाले नाम है अपनी कंपनी का। आप सेफ गूगल मसाले। शेफ, CHEF, शेफ मसाले। ओके ओके। और पिछले 20 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, खुद शेफ हूँ, इसलिए मैंने शेफ मसाले नाम रखा है। जी जी जी। और अच्छी तरह से सेल वगैरह होता आप है। कहाँ से हैं? संभाजी नगर औरंगाबाद से हूँ मैम। ओ, पर औरंगाबाद आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। से। नहीं नहीं, तो ये सब होता है मैम। और आपके तरह हर शनिवार को गेस्ट आते हैं, उनके जी भी जी लेक्चर होते हैं, और उससे बहुत सारा फायदा होता है। जी तो चाहिए तो आपका नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम भी कुछ रहा तो मैसेज कर सकते हैं, जी हमारा जी जी बिजनेस और आगे कैसा बढ़ेगा वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। या जी। कभी कभी क्या होता है, हम गेस्ट का नंबर वगैरह लेना भूल जाते हैं, फिर बाद में सो गए और दूसरे दिन भूल गए, ऐसा हो जाता है। इसलिए वो भी आप चैट बॉक्स में परमिशन है, डाल सकते तो डाल दीजिए। जी जी और हमारा बिजनेस और आगे कैसा जाएगा, और कैसा सेलिंग अच्छा होगा, ये सब आपके या अपने टीम की मदद से हम आगे भी ये कर देंगे। जी। लेकिन अच्छा लगा, आपने सब बातें बोला है और सब ये किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। सबका थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। और किसी को क्वेश्चंस या फिर कुछ बात करनी है तो प्लीज बात कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट करके। यस, ओके। डॉक्टर, माननीय डॉक्टर शर्मिला मैडम जी, आपका जो सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग, और ये जो रणनीतियां है एक उद्योजक के लिए, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनका बिजनेस में काफी सारा ग्रोथ हो सकता है। जो आपने माइक्रो माइक्रो टाइप का सब कुछ जो सेशन में लिया है वो काफी यूजफुल है एंटरप्रेनर के लिए। वो फनल मार्केटिंग का वो हुआ, फिर जो हमारा डेटा आपने सब कलेक्ट करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि इंडिया हमारा सेकंड ये कंज्यूम करने वाला देश है। तो अपॉर्चुनिटी काफी सारी है हम सब लोगों के लिए। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे हमारे बिजनेस में लेके आए और कैसे हम उसे आगे बढ़ाए, ये सारी चीजें आप हम लोगों को आज सिखाया है। इसके लिए हम येफी के तरफ से आपका बहुत सारा धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए हैं, जो हमेशा होते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी एनर्जी के साथ हम इस सेशन को विराम देंगे, और अगले शनिवार को फिर से यस टॉक में हम इसी एनर्जी के साथ वापस आएंगे और नया टॉपिक हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच। और ये हमारा ये स्टॉक यहीं पर खत्म होता है, ये मैं जाहिर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।